David realized that जिस दिन हमें ये our daddy God. जिस दिन हमें ये समझ में आ गया कि वो हमारा पिता है, So there is provision when the Lord is our shepherd. There is protection when the Lord is our shepherd. And there is reconciliation. सो जब वो हमारा चरवाहा है, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। जब वो हमारा चरवाहा है, हम सुरक्षित रखे जाते हैं, संभाले रखे जाते हैं। जब वो हमारा चरवाहा है तो रिश्तों का और दिनों का वापस जुड़ना होता है। Amen, church? And this revelation, when I got hold of this revelation that David got hold of, and if you can catch hold of it, that because your father is your shepherd, you will never live in lack in Jesus' name. और जिस दिन ये प्रकाशन मेरे दिल में उतर गया, जिस दिन ये प्रकाशन दाऊद ने अपने दिल में पा लिया कि क्योंकि वो परमेश्वर आपका चरवाहा है, वो आपका देखने का नजरिया है, आप कभी भी कमी को ना देख पाएंगे। Amen. Right, so the message that I want to share is unveiling the mystery of Psalm 23. और जो संदेश मैं देना चाहता हूँ वह है भजन संहिता 23 का जो रहस्य है उस पर से पर्दा हटाना। Now, if I would say that my life really got changed when I got a revelation of this psalm. और अगर मैं सच कहूँ तो मेरा जीवन तब बदला जब मुझे इस भजन का मुझे प्रकाशन मिला। I started walking from lack into abundance. मैंने कमी और घटी में से बाहर निकलकर बहुतायत की जिंदगी जीनी शुरू कर दी। And this is my heart, और ये मेरा हृदय है that each one of you या आप में से हर कोई will start walking in abundance. बहुतायत में जीने लग जाए। Amen? आमीन। And when I'm talking about abundance, I don't just mean finances. जब मैं बहुतायत की बात कर रहा हूँ तो मैं केवल पैसे की बात नहीं कर रहा, I'm talking about everything. मैं हर किसी बात की बात कर रहा हूँ। I'm talking about nothing missing and nothing broken from your life. मैं कह रहा हूँ आपकी जिंदगी से कुछ भी गायब नहीं होगा, कुछ भी आपके जीवन में टूटा हुआ नहीं होगा। Amen, church? आमीन कलीसिया। Okay, so before we go into Psalm 23, I want you to know this, that this psalm is a heavenly psalm. इससे पहले कि मैं भजन 23 में जाऊं, मैं बताना चाहता हूं ये स्वर्ग की ओर से दिया गया भजन है। Okay? And this psalm is written by shepherd King David. और ये भजन दिया है उस चरवाहे राजा दाऊद ने। And the Lord showed me something that I had never seen before about David. और प्रभु ने मुझे दाऊद के बारे में कुछ ऐसा दिखाया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। Do you know that David was caught up to heaven? क्या आप जानते हैं दाऊद को स्वर्ग में उठाया गया? That's why he was able to see things which nobody else in his generation could see. इसीलिए वो उन चीजों को देख सका जो उसकी पीढ़ी में कोई और ना देख पाया। Being in the time of law, David could see the time of grace. परमेश्वर वो अनुग्रह का समय तब देख पाया जब वो व्यवस्था के अधीन ही था। David, you know, if you see the David's tabernacle, there is no way between the holiest place and the holy place. जब आप दाऊद का तंबू देखेंगे तो जो अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान है उसके बीच में कोई तंबू नहीं था। So before we go into Psalm 23, I want you to see this scripture, 2 Samuel 23:1. इससे पहले कि हम भजन 23 में जाएं, मैं चाहता हूं हम दूसरा शामुएल 23 उसका 1 देखें। Okay, so it says, now these are the last words of David. Thus says David, the son of Jesse. Thus says the man raised up on high, the anointed of the God of Jacob, and the sweet psalmist of Israel. दाऊद के अंतिम वचन ये थे, यिशै के पुत्र की यह वाणी है, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया और याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त और इज़राइल का मधुर भजन गाने वाला है। Now usually the way Bible translations have interpreted it is as if God highly exalted David. और अक्सर बाइबल का जो अनुवाद आपको इस बात का मिलेगा वो ये मिलेगा कि जैसे परमेश्वर ने दाऊद को बहुत ऊंचा स्थान दे दिया। But if you see the root word high, it means to ascend, to go up, to visit and appear before God. लेकिन जो मूल भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो ऐसा है जैसे उसको स्वर्ग में उठाया गया और वो स्वयं परमेश्वर के सामने खड़ा किया गया। That's why David was the only one इसीलिए दाऊद इकलौता ऐसा व्यक्ति था who says, the Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. इसीलिए दाऊद इकलौता ऐसा व्यक्ति था जो ये कहता है पुराने नियम में कि फिर प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि तू मेरे दाहिने हो बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना बना दूं। Even the apostles couldn't see it. यहाँ तक कि प्रेरित भी ये बात ना देख पाए। Even the 4 gospels end by Jesus ascending to heaven.
जो 4 सुसमाचार है वो भी ऐसे खत्म होते हैं कि यीशु स्वर्ग में उठा लिया गया। But Apostle Paul sees Jesus seated at the right hand of the Father. लेकिन पौलुस प्रेरित जो है वो देखते हैं यीशु जब स्वर्ग में उठा लिया गया तो वो पिता के दाहिने ओर बैठा है सिंहासन पर। And David saw that years before. और दाऊद ने ये बात सालों सदियों पहले देख ली थी। Amen. So when you are reading this psalm, it's not just a nice song that a shepherd sang in. It's the revelation that was given to him by the Spirit of the living God. तो उस समय में ये कोई ऐसा गाना नहीं था जो एक अच्छा गाना जो चरवाहे लोग गाया करते थे जंगल में जब बकरी चराने जाते थे, लेकिन ये एक प्रकाशन का गाना है जो उस समय गाया गया। Amen. And I believe this psalm is so powerful, church. और मैं ये मानता हूँ कि ये भजन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है कलीसिया। If you can understand it, tap into it. अगर समझ लोगे और इसमें चलने लगोगे, I guarantee you, मैं वादा करता हूँ, you will never see lack again in your life. अपनी जिंदगी में दोबारा कभी कमी घटी नहीं देखोगे। Amen. Somehow we have glorified lack and spiritualized lack. पता नहीं क्यों लेकिन हमने कमी और घटी में जीने को बहुत महिमा दे दी, बहुत बड़ा बना दिया और उसको बहुत आत्मिक होना बना दिया है। Somehow we think lacking is to be spiritual and to have abundance is somehow wicked. पता नहीं क्यों ऐसा मतलब बना दिया है कि अगर कोई कमी और घटी में है, कोई तंगी में जी रहा है तो वो बहुत आत्मिक है और अगर कोई बहुतायत में जीता है तो वो आत्मिक नहीं है। Isn't it amazing that we have credited lack to God and abundance to Satan? क्या ये हैरानी की बात नहीं कि हमने कमी और घटी का रिश्ता परमेश्वर से जोड़ दिया और बहुतायत का रिश्ता शैतान से जोड़ दिया है। But do you know in the scripture, if you see when God made Adam, God put Adam in the garden called Eden, and Eden in Hebrew means pleasure. लेकिन परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसको आदम की वाटिका में रखा और आदम का अर्थ है आनंद। Do you know that there was no lack in the garden? क्या आप जानते हैं कि उस बगीचे में कोई कमी और घटी नहीं थी? There was abundance in the garden. उस बगीचे में बहुतायत और भरमार थी। Think about it. Can you imagine a heaven with lack in it? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कैसे स्वर्ग की जहां पर भूखमरी है, कमी घटी है? Can you imagine you go to lack and you see broken huts? आप कल्पना कीजिए आप स्वर्ग पहुंचते हैं और वहां पर टूटी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, Broken roads. टूटी सड़कें हैं। The people of God wearing torn clothes. और परमेश्वर के लोग फटे हुए गंदे हाल के कपड़े पहन के घूमते हैं। Jesus said, let it be on the earth as it is in heaven. यीशु ने कहा पृथ्वी पर भी वैसा ही हो जैसा स्वर्ग में होता है। And I want to change your mindset about abundance. और मैं आपकी मानसिकता बदलना चाहता हूं बहुतायत के विषय में। I'm not a prosperity preacher. मैं समृद्धि का प्रचारक नहीं हूं। I'm a preacher of the word and the prosperity is in him. मैं वचन का प्रचारक हूं और वचन में समृद्धि है। Not running after money. मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा। But I want to teach you how to live from abundance so that your hands will never be empty. लेकिन मैं आपको प्रशिक्षित करना चाहता हूं कैसे बहुतायत से जिएं ताकि आपके हाथ कभी खाली ना पड़े। Amen. So we'll go to the first line of Psalm 23. तो भजन 23 की पहली लाइन हम देखेंगे। You know, in Hebrew it says Mizmor la David Roi lo Eksar, which means the Lord is my shepherd, I shall not lack. इब्रानी में ऐसा लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। And usually what English Bibles have done is they have translated this as I shall not want. That's not the right translation. और अंग्रेजी बाइबल्स ने उसको ऐसा लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं कोई वस्तु ना मांगूंगा, I'll have no desire. क्योंकि मुझे चाहत ही नहीं होगी। No. जी नहीं। The word Eksar had to do with lack. David is saying, because the Lord is my shepherd, I will never be in lack.
और एक्सार शब्द जो है उसका अर्थ है कमी और घटी से, और दाऊद ये कह रहा है क्योंकि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मैं कभी कमी और घटी को देखूंगा ही नहीं। Okay, how many of you believe the word? आप में से कितने लोग वचन मानते हैं? So the word is saying, तो वचन ये कह रहा है if the Lord is your shepherd, अगर प्रभु ही तुम्हारा चरवाहा है। the problem is we don't see God as our shepherd. समस्या यहाँ पर है कि हम प्रभु को अपना चरवाहा समझते ही नहीं। But if the Lord is our only source that we look up to, लेकिन अगर प्रभु सच में हमारा एकमात्र जरिया, एकमात्र रास्ता है जिससे हमें कुछ भी मिल सकता है, then the word of God says तो परमेश्वर you का वचन कह रहा है, will never lack in your life. वचन ये कह रहा है कि तुम अपनी जिंदगी में कभी कमी नहीं देखोगे। Amen? आमीन। You know this word shepherd, और जो चरवाहा शब्द है, it's a very interesting word because I was going through every word and trying to read, going back to how the Hebrews understand Psalm 23 and how we in 21st century understand Psalm 23. It's very different. मैं भजन तेईस में जा करके हर एक शब्द को टटोल कर देख रहा था कि उसका सच में अर्थ क्या है, और इब्रानी लोग उसको कैसे देखते थे, और 21वीं सदी में हम लोग कैसे देखते हैं। You know, the word shepherd in Psalm 23 is the word rah. और जो इब्रानी शब्द है चरवाहा का वो है राह, And it has two meanings. और उसके दो अर्थ हैं। One, it पहला, talks about God being your buddy, God being your best friend. पहला अर्थ है परमेश्वर आपका सबसे गहरा दोस्त है, आपके साथ रहने वाला वो दोस्त है। So David is saying, hey, the Lord is my buddy, he's my pal, he's my best friend. So पहला दाऊद ये कहना चाह रहा है कि जो परमेश्वर है वो मेरा दोस्त है, I mean like my वो मेरा पक्का दोस्त है। जय वीरू। Yeah. Are you getting it, church? And then the second meaning is that the Lord is my way of seeing. The Lord is my way of seeing. Shepherd means the way of seeing. और दूसरा अर्थ चरवाहा शब्द का राह शब्द का है, वो मेरा देखने का नजरिया या देखने का तरीका है। Do you know in your life you get influenced by your best friend? क्या आप जानते हैं अपनी जिंदगी में आपके जो गहरे दोस्त होते हैं, जो अच्छे दोस्त होते हैं, उनके सोचने के तरीके आपको प्रभावित करते हैं। And what David is saying is तो दाऊद ये कह रहा है, because the Lord is my best friend, क्योंकि परमेश्वर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, He is my way of seeing. That means I see things as He sees things. वो मेरा देखने का नजरिया भी है। इसका मतलब मैं चीजों को वैसे देखता हूँ जैसे परमेश्वर देखता है। Do you know in Genesis chapter 12 when Abraham called that place Jehovah Jireh, उत्पत्ति 12 में जब अब्राहम ने उस जगह को यहोवा यीरे कहा, do you know what is the meaning of Jireh there? यीरे का क्या अर्थ है जानते हैं? Which word is used? कौन सा शब्द यूज किया गया है? Same word, Rah. वही शब्द राह। So Jireh doesn't mean provider. Jireh means Jehovah is my way of seeing. तो जब अब्राहम भी कहता है यहोवा यीरे, तो वो यही कहना चाह रहा है कि यहोवा वो परमेश्वर मेरा देखने का नजरिया है। That means your provision is hidden in the way you see. इसका अर्थ ये है आपकी जिंदगी में जो कुछ आपको चाहिए वो छुपा हुआ है आपके देखने के नजरिए में। I'll say it again. Your provision is hidden in the way you see. अपनी जिंदगी में जो कुछ आपको चाहिए वो छुपा हुआ है, कैसे आप देखते हैं, किस नजरिए से आप देखते हैं उस बात में। Amen. And David is saying, और दाऊद ये कह रहे हैं, He's my best friend. परमेश्वर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, So I see things through His eyes. इसलिए मैं उसकी आंखों से सब बातों को देखता हूँ। Do you know one thing about God is He never sees lack. परमेश्वर की एक खास बात यह है कि उसको कमी और घटी नहीं दिखती। God just doesn't see lack. परमेश्वर कमी घटी नहीं देखता। And we live in a world where we are trained with the mindset of lack. और हम ऐसी दुनिया में पलते बढ़ते हैं जहां पर हमारा प्रशिक्षण होता है कमी और घटी को देखने के लिए। Oh, there are 10 openings. अरे 10 नौकरियां निकली हैं, It's going to run out. सो भाग के जाओ अप्लाई करने के लिए। If I don't get it, अगर मुझे नहीं मिली somebody else will get it. तो कोई और ले जाएगा नौकरी, And if somebody else get it, और अगर किसी और को मिल गई I won't get it.
तो मुझे नहीं मिलेगी। Isn't that the reason why there is so much of jealousy and wars? Because of the mindset of lack. क्या सच में ये मकसद या ये कारण नहीं है इतनी ईर्ष्या और लड़ाइयाँ होने का, क्योंकि हम लोग हर बात को कमी और घटी से तोलते हैं, देखते हैं। So when my brother gets blessed, तो जब मेरे भाई को आशीष मिलती है, I get jealous because I think that was the only portion God had, and when he got it, then I haven't. तो जब मेरे भाई को कुछ आशीष मिलती है मुझे जलन होती है, क्योंकि मुझे कमी घटी की नजर के कारण ऐसा लगता है कि परमेश्वर के पास वही था देने के लिए जो वो ले गया, तो मेरे पास कुछ, मेरे लिए कुछ नहीं है परमेश्वर के पास। अरे मुझे लड़का पसंद था पर किसी और लड़की से उसकी शादी हो गई। Hey, church, I'm here to tell you, your father's provision is inexhaustible. कलीसिया में ये कह रहा हूं, आपके पिता के पास जो है उसका कोई अंत नहीं है। Nobody has taken away from your provision. किसी ने भी आपके हिस्से का जो है उसमें से नहीं लिया। Amen. After the boy thing, I can hear Neha's voice. Amen. Okay. You won't run out because somebody else got it. आपको कमी नहीं पड़ेगी इस वजह से कि कोई और ले गया सामान। Amen. Say, my God बोले मेरा परमेश्वर is more than enough. बहुत आयत से बढ़कर है। Say it as if you mean it. My God पूरे दिल से कहो ये बात, मेरा परमेश्वर is more than enough. मेरी जरूरतों से बढ़कर है। Amen. So can we stop this competition and feeling bad when somebody other gets blessed? तो क्या हम तुलना करना और ईर्ष्या करना, जलन करना बंद कर सकते हैं जब कोई और बढ़ता है अपने जिंदगी में? Rather, can we say, Papa, thank you, my brother got blessed, my provision is on the way. पर क्या ये कह सकते हैं, पिता धन्यवाद क्योंकि मेरे भाई को भी आशीष मिली है, जो मुझे मिलना है वो भी रास्ते में ही होगा। My provision is on the way. जो मुझे मिलना है वो रास्ते में ही है। Right? Because the Lord is my shepherd. क्यों? I will never lack anything in my life. क्यों? क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे अपनी जिंदगी में कोई कमी नहीं देखनी पड़ेगी। Amen. What won't you lack? किस बात की कमी नहीं होगी आपको? Everything. हर अच्छी बात की कमी नहीं होगी आपको। God will provide everything. परमेश्वर हर एक बात आपके जीवन में देगा। Amen, church? You know, I really want that we can change our mindset from lack to abundance. काश कि हम अपना नजरिया, मैं सच में ये चाहता हूं कि हम अपना नजरिया कमी और घटी की मानसिकता से हटा करके बहुत आयत की मानसिकता पर ले आए। You remember last Sunday we saw how a scripture where it says that people work hard for the fear of not having enough. आपको याद है पिछले रविवार हमने एक आयत देखी थी जो बताती है कि लोग इस डर के मारे कि उनको कम पड़ जाएगा वो बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत करते हैं। अरे सिलेंडर इतना बढ़ गया, सिलेंडर बढ़ गया। Can I tell you honestly? सच बताऊं, If the Lord is your shepherd, अगर परमेश्वर आपका चरवाहा है और सिलेंडर 10,000 का भी हो गया, and cylinder goes up to 10,000, then also तब भी you will cook. तब भी आप डीप फ्राई करके पकौड़े बनाएंगे। I mean, like, you know, we think it's wise, हमें लगता है कि ये बुद्धिमानता है या बुद्धिमानी है, but it's the mentality of lack masquerading as wisdom. लेकिन असल में वो कमी और घटी से देखने का नजरिया है जो ढोंग कर रहा है बुद्धिमान होने का। 10 रुपए वहां दिए, 5 रुपए रिक्शे वाले को दिए, तो 2 रुपए उसको दिए, तो उसके बाद 10 रुपए यहां दिए। Hey, the Bible says God gives liberally. बाइबल कहती है परमेश्वर आजादी से देता है। You know why he gives liberally? पता है क्यों आजादी से देता है परमेश्वर? So that you can give liberally. ताकि आप आजादी से दे सको। Amen. We call it wisdom. और I'm हम telling उसको you, बुद्धि that's कहते not हैं। godly wisdom. वो परमेश्वर की ओर से आने वाली बुद्धि नहीं है। You know, the Bible says Jesus knew that Judas was stealing from the money bag. और बाइबल कहती है यीशु को पता था कि यहूदा जो है, जो जुडस है, वो
खजाने में से पैसे चुराता है. He didn't call a board meeting. Judas is stealing from our account. उसने बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाई सारे चेलों के साथ कि जूडस हमारे गले में से चुरा रहा है, We're going to run out. कि पैसे खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा. No, I'm not saying that you open your house and say, thieves come and steal my house. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपना घर का दरवाजा खोलकर सोए रात को कि चोर आए और चुरा ले जो What चुराना I'm है. saying is, whatever was happening externally did not change the internal reality in Jesus' heart. मैं ये कह रहा हूँ जो बाहर चल रहा था उन सारी बातों ने यीशु के जो अंदर चल रहा था उस हकीकत को नहीं बदला. If the price of petrol can cause anxiety in your heart, if whatever is happening in your office or whatever is happening externally can change your internal reality, then guess what? You're still living with the mentality of lack. अगर पेट्रोल का दाम आपको परेशान करता है और अगर आपके ऑफिस में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, यहाँ वहाँ क्या चल रहा है, इससे आपकी जो भीतरी हकीकत है उस पर फर्क पड़ता है, तो अभी भी आप कमी और घटी की सोच मानसिकता लेकर चल रहे हैं. If God can feed 60 lakh Israelites in a desert for 40 years, guess what? He can feed you and your family. अगर परमेश्वर 60 लाख इजरायलियों को 40 साल तक रेगिस्तान में तीनों टाइम खाना खिला सकता है तो वो आपको और आपके परिवार को भी संभाल लेगा. I mean, like, God is even fulfilling their complaint. They're like, manna hi manna ho gaya hai. Like, we want meat now. परमेश्वर उनकी शिकायतों को भी पूरा कर रहा है. वो कह रहे हैं मन्ना खा खा के उगता गए हैं, कुछ मांस मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा. We want meat. मांस खाने का मन कर रहा है. Where? कहाँ से? In कहाँ the पे? desert. कहाँ? रेगिस्तान में For मांस how चाहिए. many people? कितने लोग के लिए? 60 lakhs. 60 लाख लोगों के लिए. Think about it. सोच के देखो. 60 lakh people. 60 लाख लोग. God says, okay, I'm going to feed you so much that meat will come out from your nostrils. प्रभु कहता है इतना खिलाऊंगा कि तुम्हारे नाक से लेग पीस निकलेगा. The journey now is learning to be conscious that you are living from heaven on the earth. यात्रा ये है कि इस बात को जान लेना कि आप स्वर्ग में बैठे हो और पृथ्वी पे जी रहे हो. And in heaven there is no lack. और स्वर्ग में कुछ कमी नहीं है. Are you getting it, church? What I'm saying is that the reality of the word is much greater than your external reality. मैं ये कह रहा हूँ जो वचन की हकीकत है आपके आसपास की हकीकत से बहुत ज़्यादा असली है. Think about this. Jesus, let's see. John chapter 6. I want you to see something. Are you ready? यूहन्ना Okay, 6 John तैयार है chapter कुछ देखने के 6, लिए? we'll read from verses यूहन्ना 6 3. उसकी तीसरी आयत से पढ़ेंगे हम. Hallelujah. Oh, let read 5, verse 5. पाँच से John देखते हैं. chapter 6, verse 5. यूहन्ना 6 उसका 5. Okay. Come on, come on. Come on. Till that time, turn to your neighbor and say, neighbor, अपने पड़ोसी को तब तक कहें पड़ोसी be ready. तैयार हो जाओ. Be ready for the boatload of fish. तैयार हो जाओ नाव भर मछली के लिए. Amen? Okay. So, guys, John, Matthew, Mark, Luke, John. Where you want? It's after Genesis. Okay. So yeah, let's. Okay, they are lost in the glory. Hallelujah. John 6:5. Okay.
So then Jesus lifted up his eyes and seeing a great multitude coming towards him, he said to Philip, "Where shall we buy bread that these may eat?" यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने फिलिप से ये कहा, हम उन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटी खरीदें? Okay, so Jesus lifted up his eyes and he saw this, not just a multitude, but a great multitude. यीशु ने अपनी आंखें उठाई और ये देखा कि भीड़ नहीं, बहुत बड़ी भीड़ आ रही है। And Jesus is saying to Philip, "Hey, where shall we buy bread?" और यीशु फिलिप से कहते हैं कि इन सब के लिए रोटियां कहाँ से खरीदें? But this he said to test him, for he himself knew what he would do. और अगली बात बताती है कि उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा था, क्योंकि वो तो जानते थे कि वो क्या करेंगे। Okay, let's see what Philip does. और देखते हैं Philip फिलिप does ने what क्या we किया। do all the time. फिलिप ने वो किया जो हम हमेशा करते हैं। So Philip becomes a mathematician. और फिलिप उसी समय कैलकुलेटर निकाल के मैथमेटिशियन बन His गया। analytical mind comes up. He's like, उसका दिमाग गणित करने लग गया उस टाइम। Open your calculator. Okay, so एक रोटी एक नान 8 रुपए की, तो ये चलो एवरेज लगाते हैं, 4 तो खाएंगे नान, ta 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 ta. So now he's calculating. Okay, अब so it's वो- going to take 1 year worth of wage. अब वो हिसाब किताब लगा रहा है, कितने लोग हैं, कितनी रोटी खाएंगे, कितना खर्चा आएगा, और कह रहे हैं कि लगभग 1 साल की जो तनख्वाह है उतना खर्चा चाहिए इन लोग के लिए। That's what we do, right? हम भी तो यही करते हैं, नहीं? We calculate, we analyze. हम हिसाब किताब लगाते हैं। Now that is not wrong. गलत But what नहीं I'm है। saying is that's the only way sometimes your analytical mind becomes a hindrance for your miracle. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यही कारण है जो हमारा हिसाब किताब लगाने वाला दिमाग है हमारे जीवन में चमत्कार होने में रुकावट बन जाता है। God says, "Hey, परमेश्वर कह रहा है, I want to give you a house." मैं तुझे घर देना चाहता हूँ। Wait a minute, God. मैं कहा, रुको रुको प्रभु रुको। 3 साल की ITR फाइल हो गई है. This is what the rate of interest. This. He said, "I'm going to give you a house." Say amen. I receive it. परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे घर देना चाहता हूँ, तो बोलो आमीन, मैं ग्रहण करता हूँ। Amen. Let him do the calculation. उसको गणित करने दो। He told Abraham, उसने "I'm going to make you a father of many nations." उसने अब्राहम को कहा मैं तुझे कई देशों का पिता बनाऊंगा। There was no calculation. कोई गणित नहीं थी वहां पे। Are you getting it? Okay, so Philip is now doing these calculations. और फिलिप ये सारा हिसाब किताब कर रहा है 200 denarii worth of bread is not sufficient for them. कि 200 दिनारी की रोटी भी खरीद लाए तो भी कम पड़ेगी इन लोग के लिए। I'm sorry, we are not yet in Psalm 23, and I think it will take a series too. But yeah, so that you understand. I just want to give you a mindset of abundance before we go there. माफ कीजिए, हम भजन 23 में अभी तक नहीं गए और शायद समय चाहिए होगा उस पूरी शिक्षा के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी मानसिकता बदले, बहुतायत की मानसिकता में, उसके लिए मैं I बताऊं। want to come back to verse 6. मैं And छठी it आयत पे वापस says, आऊं। "But Jesus said this to test him, for he himself knew what he would do." और छठी आयत में ऐसे लिखा है कि यीशु ने ये फिलिप की परीक्षा लेते हुए कहा था, क्योंकि वो तो जानता था कि वो क्या करेगा। Okay, I want you to show the word "knew." The word "knew" in Greek, if you see the meaning, you'll be amazed. और जो वो जानता था, जो जानता शब्द है उसका जो अर्थ है इब्रानी में आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। The word "knew" means to see. जो जानता शब्द इब्रानी में इस्तेमाल किया गया है वो है देखना, To see with the eyes of heart. अपनी हृदय की आंखों से देखना। So before Jesus, when Jesus saw a need, when Jesus saw lack in his heart, he saw abundance. सो जब यीशु ने बहुत बड़ी भीड़ को देखा और उसने कमी देखी कि इन सब के लिए खाने की कमी पड़ेगी, तो उसने अपने हृदय में बहुतायत देखी रोटी की। Amen, church. Are you getting this? That means his internal image, his internal vision was much stronger than externally what he was seeing with his naked इसका eyes. मतलब जो उसके अंदर दर्शन चल रहा था वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली, मजबूत था उस दर्शन से जो वो अपनी इन आंखों से देख रहा था। The provision in him was so strong that when, can you imagine 10,000 people? और जो बहुतायत उसके अंदर चल रही थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी उससे जो बाहर चल रही थी। Can you imagine 10,000 people? आप कल्पना कर सकते हैं 10,000 लोग And then they are hungry. और भूखे हैं वो, You have to feed them. आपको उनको खाने को देना है। And then Andrew Bhai Sahib comes.
और फिर एंड्रू भाई साहब आते It's हैं. like a boy has, Guruji, a boy has 5 roti and 2 machli. वो बोलते हैं एक बच्चा है, उसके पास 5 रोटी और 2 मछली हैं. If we were in his place, I'd say, तू ही खा ले वो. Right? I mean, like, can you imagine 5 loaves and 2 fish for 10,000 people? Does not make sense. कल्पना करें 10,000 लोग के लिए 5 रोटी और 2 मछली. What did he do? He said, bring it to me. He lifted up and he thanked the Father for that. उसने क्या किया? उसने वो बोला मेरे पास लेकर आओ, उसको पिता की ओर उठाया और पिता का धन्यवाद दिया. Most of the believers live in lack because they have yet not understood this principle. अधिकतर विश्वासी इसलिए कमी और घटी में जी रहे हैं क्योंकि उनको अभी भी ये बात समझ में नहीं आई. A little थोड़ा सा given into a shepherd's hands will never remain little. जो थोड़ा हमारे हाथ में है, अगर वो हमने उस चरवाहे के हाथ में दे दिया तो वो थोड़ा नहीं रह जाएगा. It is going to feed nations. वो देशों को भरपूरी से खिलाएगा. Amen? Amen, church? Okay, let's come back to the psalm. Woo! Hallelujah. Okay, so the Lord is my shepherd. He's my best friend. He is my ability to see. यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मेरा देखने का नजरिया है. I shall not lack. मुझे कमी देखनी नहीं पड़ेगी. The root word exar, which means is I will never have empty hands. और जो एक्सार शब्द है इब्रानी भाषा में, उसका ये अर्थ है कि मेरे हाथ कभी भी खाली ना होंगे. Can you imagine what your life would be if your hands are never empty? क्या आप कल्पना कर सकते हैं आपका जीवन कैसा होगा अगर आपके हाथ कभी खाली ना हो तो? And David is declaring it because the Lord is my shepherd, my hands will never be empty. और दाऊद ये घोषणा कर रहा है क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरे हाथ कभी भी खाली नहीं होंगे. That means everyone who comes to you, he will never leave empty-handed. इसका मतलब जो कोई आपके पास कभी भी आएगा वो कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाएगा. Amen? And it's not just money. और केवल पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं. It's about everything. लेकिन हर एक बात के बारे में कह रहा हूं. If it is about favor, then I declare your hands will never be empty. अगर तरफदारी की बात हो रही है तो मैं कहता हूं आपके हाथ कभी भी खाली ना होंगे. If it is about power, then I declare that your hands will never be empty. अगर सामर्थ्य की बात हो रही है मैं कहता हूं आपके हाथ कभी भी खाली ना होंगे. If it is about children, then I declare your hands will never be empty. अगर बच्चों की बात हो रही है मैं कहता हूं आपके हाथ कभी भी खाली ना होंगे. If it is about helping others, then I declare your hands will never be empty. अगर दूसरों की मदद करने की बात हो रही है तो मैं कहता हूं आपके हाथ कभी भी खाली ना होंगे. If it is about giving in the kingdom, I declare that your hands will never be empty. अगर राज्य में देने की बात होती है मैं कहता हूं आपके हाथ कभी भी खाली ना होंगे. Amen. And when I came into ministry, I mean, like, we all are in ministry, but when the Lord told me to resign my job, जब मैं सेवकाई में आया, और हम सब जहाँ कहीं हैं हमारी सेवकाई वही है, लेकिन जब प्रभु ने मुझसे खास कर कहा अपनी नौकरी छोड़ूं, so some people told me that, now because you're coming into ministry, you're going to lack, and God will teach you through that lack. और कुछ लोग मुझसे कहने लगे क्योंकि अब तुम सेवकाई में आना चाहते हो तो अब तुम्हें कमी और घटी का सामना करना पड़ेगा और प्रभु तुम्हें सिखाएगा उस कमी में से. And there was this wrestle, that happened in my heart. I was like, Lord, when I was working for a man, I used to get my salary on time. I was able to feed my family. And now, because I'm completely trusting you, people say that I'm going to lack. और मैंने प्रभु से, और मेरे दिल के अंदर एक युद्ध चलने लगा. मैंने कहा प्रभु, जब मैं एक इंसान के लिए नौकरी कर रहा था, उस इंसान ने मेरी तनख्वाह टाइम पर दी ताकि मैं अपने घर का खर्चा चला पाऊँ, अपने बीवी बच्चे को खाना खिला पाऊँ. और लोग कह रहे हैं कि जब मैं आपकी सेवा करूंगा, सब कुछ छोड़ के आपके लिए काम करूंगा, तो मुझे कमी देखनी पड़ेगी. And he said, would you believe a man or would you believe me?
और प्रभु ने मुझसे सवाल किया, क्या तू इंसान की बात मानेगा या मेरी बात मानेगा? I said, Lord, I'll believe you. मैंने कहा, प्रभु मैं आपकी ही बात मानूंगा। He said, you will never lack. उसने कहा, तू कभी कमी नहीं देखेगा। And that day, till today, I have not lacked. और उस दिन से आज तक मैंने कभी कमी को नहीं देखा And I will not lack. और ना ही कभी कमी देखूंगा। You know why? पता है क्यों? Because I am not my own shepherd, He is my shepherd. क्योंकि मैं अपना खुद का चरवाहा नहीं हूं, वो मेरा चरवाहा है। You know, think about David. He's a man who was a young boy as a shepherd. You know, और दाऊद के बारे में देखो, एक जवान लड़का था, चरवाहा था, taking care of his father's sheep. अपने पिता की भेड़ बकरियों को चरा रहा था। And the Bible says there were times wherein he killed lion and bear to save the sheep. और बाइबल कहती है ऐसे समय थे उसने शेर और भालू को मार गिराया अपने पिता की भेड़ों बकरियों को बचाने के And लिए। then he killed Goliath. और फिर उसने गोलायत को मार गिराया। Never you will see David saying, I am a self-made king. आप कभी नहीं देखेंगे दाऊद को ये बात कहते हुए कि मैं अपने बलबूते पर राजा बनाऊं। Have you met those people, self-made people? आप ऐसे लोगों से मिले हैं जो अपने बलबूते पे सब कुछ बने होते हैं? I feel pity for them मुझे बहुत दुख होता है उनके लिए, because they are so deceived. क्योंकि वो बहुत बड़े धोखा खाए हुए हैं। Oh, some people don't like it कुछ लोग को पसंद नहीं आएगा because they want to be their own shepherds. क्योंकि वो अपना चरवाहा बनना चाहते हैं। But David knew one secret. लेकिन दाऊद को एक रहस्य पता था। He knew that the Lord is his shepherd. उसको ये पता था कि यहोवा मेरा चरवाहा है। And because the Lord is his shepherd, when David writes this, he's a king. और जब दाऊद ये बात लिख रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो तब लिख रहा है जब वो राजा है। And he has billions of dollars at his disposal. और उसके पास $बिलियन पड़े हुए जब उसको चाहिए खर्चने के लिए। And then he writes, because the Lord is my shepherd, I will not lack. और उस समय में वो लिखता है क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी नहीं होगी। His trust was not in the money that was in the treasury, the gold, silver. His riches was in the Lord. उसका भरोसा उस खजाने पर नहीं था जो उसके राज्य में खजाने में पड़ा हुआ था, लेकिन परमेश्वर पर था। David knew this secret. दाऊद ये रहस्य जानता था। Are you getting it? We fluctuate because when there is a lot in our account, it's like, oh, praise God, hallelujah, I will not lack. And then when the numbers start going down in your account, your heartbeat starts rising up, you know. और जब हमारे अकाउंट में बहुत पैसा आता है तो हम बहुत खुश होते हैं, पता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। फिर अकाउंट में बैलेंस कम होता है और दिल की धड़कन तेज होती है। Even when I was working, जब मैं नौकरी कर रहा था तब 9 भी to 5 job, अच्छी and even जॉब थी। today, और आज you can ask Monica, आप मोनिका से पूछ सकते हैं, I hardly know how much money is in my account. मुझे पता ही नहीं रहता मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। Let me do a litmus test. If when the number in your account starts going down and your pressure goes up, ये एक लिटमस टेस्ट की तरह है, जब आपके अकाउंट में जो नंबर्स हैं वो कम होते हैं और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है। or if you are striving hard to grow the number in your account, या आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इसलिए कि जो अकाउंट में नंबर हैं वो बढ़ जाए थोड़ा सा। इस साल 4 लाख तो सेविंग होनी चाहिए, 4 लाख। You are still operating from the mentality of lack. आप अभी भी कमी घटी की मानसिकता से काम कर रहे हैं। You know, lack, you don't say it out loud, but what lack says is, what you say is, lack is nothing but declaring that God is not present. और आप अपने मुंह से तो ये बात कभी नहीं कहेंगे, लेकिन कमी और घटी की मानसिकता से सोचना ये कहना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी देख नहीं रहा। Can you imagine? I go home and Eliana is like this. Oh man. It's like, Ellie, what happened? She's like, I don't know if I'll get food today or not. और आप कल्पना कर सकते हैं, मैं घर जाता हूँ और मेरी बेटी एलियाना सर पकड़ के बैठी है, मैं बोलता हूँ क्या हो गया बेटा? बोलती है पता नहीं पापा, आज खाने को मिलेगा कुछ कि नहीं मिलेगा। I'll be like, as long as your father is alive, you will not lack.
तो मैं ये कहूंगा, जब तक तेरा पिता जिंदा है तुझे कमी नहीं होगी। This father can be unfaithful, but that father is always faithful. और ये पिता अविश्वासी हो सकता है, लेकिन वो पिता कभी भी अविश्वासी नहीं होगा। So I want to declare this over you. As long as your father is alive, you shall not lack in Jesus' name. तो मैं ये घोषणा आपके ऊपर करता हूं, जब तक आपका पिता जीवित है, अपनी जिंदगी में आप कमी और घटी नहीं देखेंगे, यीशु के नाम में। Amen. You know, it's not about David when he went to when there was Goliath and he was challenging the armies of Israel. David didn't go, oh man, if I don't kill Goliath, somebody else and they will become the king. No, he was not an opportunist. He was not looking for an opportunity. David knew. जब दाऊद अपने भाइयों को खाने का डब्बा देने गया और गोलायत वहां पर चुनौती दे रहा था, तो दाऊद ने ऐसा नहीं देखा मौका कि अगर ये मौका मैंने गवा दिया तो कोई और गोलायत को मार देगा और राजा बन जाएगा। वो ऐसा नहीं देख रहा था, वो मौका नहीं तलाश रहा था। We all of us, we have to renew our minds because we think things are going to run out. Oh, कनाडा का वीजा खुला है, oh, ऑफिस बंद हो जाएगा कनाडा का 3 महीने में। Hey, हम सबको अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है, क्योंकि हम सब ये सोचते हैं कि अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। If God wants to send you to Canada, maybe I'm being prophetic. If God wants to send you to Canada, He will move mountains to send you to Canada. अगर प्रभु आपको कनाडा भेजना चाहता है तो पहाड़ों को हिला देगा ताकि आप कनाडा में हो। Amen. So let's start living from rest. इसीलिए हम विश्राम से जीना शुरू कर दें। Nobody can take away your portion. कोई भी आपका भाग, आपका हिस्सा चुरा नहीं सकता। Nobody is taking your husband, कोई would be आपका- husband, would be wife. कोई भी आपका होने वाला पति या होने वाली पत्नी चुरा नहीं सकता। God has some sisters know exactly what I mean. Okay. We have to understand that what is the real provision? The provision is not money, it's not job, it's not car, it's not house, but it's Him. Everything in the universe came out from Him. असली संपत्ति अच्छी नौकरी मिलना, गाड़ी, घर, ये सब नहीं है। असली संपत्ति परमेश्वर है, क्योंकि उसमें से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। I've shared it before, but I want to share a little bit of stories, my life story. मैंने पहले ही बताया अपने जीवन की कुछ कहानियां, लेकिन बताना चाहता हूँ दोबारा। We were working in a call center. हम एक कॉल सेंटर में नौकरी कर रहे थे। Working for 2 months, we didn't get salary. 2 महीने तक नौकरी कर रहे थे और कोई तनख्वाह नहीं दी हम Third लोगों ने। month, तीसरे महीने we are waiting for the salary. हम इंतजार कर रहे हैं सैलरी मिलेगी, Then our boss calls all of us. और बॉस ने हम सबको बुला दिया। Sorry, बोला माफ कर दो, company went down. कंपनी डूब गई, We don't have anything to give you. पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, Tata, bye bye. जाओ बाय। Everybody is frustrated. और हर कोई बहुत गुस्से में था। You have to pay rent. रेंट पे करना है, So we are in the cab, और हम कैब में वापस जा रहे हैं अब सब। and everybody is so filled with love for the boss. They are saying nice, colorful words. They are blessing the boss in an amazing way. और हर कोई इतना प्रेम से भर गया बॉस के लिए कि इतने रंगीन शब्द उनके लिए कह रहे हैं। All throughout the journey, पूरे रास्ते भर creative words. बहुत रचनात्मक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं बॉस की तारीफ में। And I don't know what to say. और मेरा मुंह बंद था, क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं क्या करूंगा। And I'm just thinking, where will I pay my bills from? और मैं सोच रहा था बिल्स कहाँ से दूंगा। Suddenly I heard the Lord so clearly. और अचानक मैंने प्रभु की आवाज को सुना। He said, I am your portion और उसने कहा, मैं तेरा हिस्सा हूँ and your exceeding great reward. और तेरा बड़ा प्रतिफल। Suddenly I understood, it's not the 20,000 that fall in my account, it's whose I am. If I belong to Him, it's His responsibility to take care of me. और अचानक मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो 20,000 मेरे अकाउंट में आते हैं
वो मेरा घर नहीं, उससे मेरा घर नहीं चलता, लेकिन जिसका मैं हूँ, जिसका मेरा जीवन है, वो मेरा घर चलाता है। And I just began to thank God. और मैं प्रभु का धन्यवाद करने लगा। I said, God, मैंने कहा प्रभु you are my portion. आप मेरा हिस्सा हैं। You know what happened? पता है क्या हुआ? That boss वो बॉस came to my house, मेरे घर आया, gave me the entire salary. मुझे पूरी सैलरी दे दी। Everything in our life is flowing from here. हमारी जिंदगी का सब कुछ यहाँ से बह रहा है। If you have lack mentality here, guess what? You will always see lack in your life. अगर यहाँ पर जो देखने का नजरिया है उसमें कमी और घटी है, तो हमेशा कमी और घटी आसपास दिखाई देगी। And the lack mentality always gets jealous of abundance. और वो कमी घटी की जो मानसिकता है, हमेशा जहां कहीं बहुतायत दिखाई देगी उससे जलन होने लगेगी। Are you getting it?